Assalamualaikum student. Today we are going to discuss from this paragraph. Okay, now I am going to read this. It is of course a trifle absurd to speak of Asia as unity. Okay, here the writer is saying that unity cannot be expected in Asia. Why का reason अभी आगे मिलेगा. ये कहना चाहता है we cannot expect unity in Asia. अब आप खुद सोचें एशिया में क्यों यूनिटी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. Only opposition to Western imperialism as cause people to think in this term. Asia contain half the population of the world. So here is a reason why writer cannot expected unity in Asia, because Asia contains half of the population of the world, and here three civilizations are living. One civilization is Islam, and second is India, and the third is China. Okay, writer is saying that in Asia three population live. One is Islam, second is India, and the third is China. All of this civilization are different from each other. अब देखो ये तीनों civilization एक दूसरे से different है. देखो इस्लाम totally अलग है, हिंदुज़म से भी अलग है, और चाइनीज़ जो कि बुद्धिस्ट हैं उनसे भी अलग हैं. देखो हम सिर्फ वन गॉड को मानते हैं, और हिंदुज़म बिलीव इन मैनी गॉड, और चाइना एक ही बुद्ध को मानते हैं, लेकिन वो बुद्ध को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं. So we all are different from each other. So here the writer is saying that in Asia we cannot expect unity. तो जब यूनिटी नहीं होगी तो आपस में झगड़ा होगा. तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं आगे देखते हैं. दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर जस्ट एज मच हैज़ डिफर फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिस्टाइन, एंड देयर इज़ नॉट फाइनेस्ट रीजन टू एक्सपेक्ट देम ऑल एक्ट इन यूनिजन. What is to be hoped is not an endeavor after culture and political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. When I speak of independence, I am not thinking only of the politics but of culture. There is a danger of too much cultural uniformity. Not great civilization on has ever been cosmopolitan. Cosmopolitan का मतलब है different civilization, जैसे डिफरेंट तरीके के लोगों को एक्सेप्ट करना. ओके, तो हियर द राइटर इज सेइंग दैट थ्री सिविलाइजेशन तो एशिया में रह रही है. अब जब हमें एक दूसरे को एक्सपेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें हर किसी के कल्चर को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है राइटर. सो ये सिर्फ पॉलिटिक्स वे में नहीं कर रहा, मतलब वो ये नहीं चाहता कि पॉलिटिकल वे में हम सब एक हो जाएं, बल्कि कल्चरल वे में भी वो कह रहा है कि वी शुड बी यूनाइटेड. ओके, अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तो कॉस्मोपॉलिटन होगा. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक्सेप्शन ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन. Now come to the this paragraph. Modern cosmopolitanism is based upon the science and machinery. अभी मैं कह रही हूँ ना, cosmopolitanism का मतलब है different civilization, different mixture of different country के लोगों को accept करना. तो हम कब accept करते हैं different लोगों को on the basis of science and machinery. देखो ये तो bitter reality है. अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर रहा, सो ही विल लैग बिहाइंड, दैट कंट्री विल लैग बिहाइंड. सो अगर हमें कॉस्मोपॉलिटिज्म करनी है तो साइंस और मशीनरी में भी अपने आप को आगे करना होगा. अब आगे राइटर क्या करें. दिस टू न्यू एलिमेंट इन द सिविलाइजेशन हैज़ बीन सुप्रीम पोस्ट अपॉन culture and have shown themselves such power solvent they tend to put an end not only to what was bad and also to what was good in the civilization of the past. It must be admitted they are necessary, they are good if rightly controlled. अब देखो यहाँ पे साइंस और मशीनरी की तो बात हो रही है. राइटर यहाँ पे बिवेयर कर रहा है, हमें बाखबर कर रहा है, हमें कह रहा है कि ऑल्दो साइंस एंड मशीनरी इज़ नेसेसरी बट इट शुड बी राइटली कंट्रोल. अगर इसको राइटली कंट्रोल नहीं किया जाएगा ना, सो वी विल बी रूइंड, हम तबाह हो जाएंगे अगर हम साइंस एंड मशीनरी को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे. बट इट नीड टू बी एडमिटेड दैट adulations of them should sweep away
everything else. If human life is to be tolerated, it cannot be wholly machinized. Up here the writer is saying that although the machinery and science is necessary for the life, but हमें पूरी लाइफ को, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली मशीनाइज नहीं करनी है। आजकल हम देख रहे हैं हमारी पूरी लाइफ क्या हो गई है, मशीनाइज हो गई है। हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल, हर वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हर वक्त मशीनरीज का मोहताज हो जाना। जैसे कि आप जो स्मॉल कैलकुलेशन भी करते हैं ना, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, आप अपने माइंड से नहीं करते हो। सो यहाँ पे बैथन रसल कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ को फुली मशीनाइज नहीं करनी है। It must continue to contain poetry, music, art, love and the simple joy of life. ओके यहाँ पे बैथन रसल बता रहे हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है, सो हमें अपनी लाइफ में क्या इंकलकेट करना है, हमें पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट, लव, सिंपल जॉय को भी इंकलकेट करना है। These are the things that tend to be forgotten in a machine age. This is a machine age and we have forgotten all this thing in our life. दे आर फॉरगॉटन इन अ कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी। मैंने अभी आपको कम्युनिज़म भी पढ़ाया था ना, सारा गवर्नमेंट के हैंड में चले जाना, लोग मेहनत करें लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो। सो कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी में भी ह्यूमन बीइंग को क्या बना दिया था, मशीन बना दिया था। सो ये लोग भी भूल गए थे कि व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट इज़ म्यूज़िक, व्हाट इज़ आर्ट, लव एंड सिंपल joy of life. So remember this thing कि मशीनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमें अपनी पूरी लाइफ को मशीनाइज नहीं करना है। और दे आर गिविंग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। Sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. I should like to hope that reawakening Asia will remember this element in the good life. Okay, here the writer is saying, writer ने क्या कहा है यहाँ पे, कुछ रिकमेंडेशन और कुछ सजेशन हमसे शेयर किए थे, और वो कह रहा है कि ये सजेशन हम जब फॉलो करेंगे देन वी विल अवेक, अदरवाइज़ हम अवेक नहीं होंगे। फर्स्ट उसने क्या कहा था, हमें कम्युनिज़म को अवॉइड करना है, इम्पीरियलिज़म को अवॉइड करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करना है, कॉस्मोपॉलिटिनिज़म करना है, तो हमें मशीनाइजेशन और साइंस को एक्सेप्ट करना है, और हमारी लाइफ को पूरी मशीनाइज नहीं करना है हमें। ओके, आगे देखते हैं क्या सजेशन और एडवाइस हमें मिल रही है। आई शुड लाइक टू थिंक दैट रिवेलरीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस विल नॉट बी सर्व टू द compel militaristic machinization. I should say that reawakening nation of Asia, your independence will not be difficult to preserve. Here the writer is directly addressing to the Asian country. ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस को ख़तरा नहीं है, especially in the view of the divergence of the rest of the world into two hostile camps. अगेन द राइटर कह रहा है कि यहाँ हमारी दुनिया जो है वो दो हॉस्टाइल ब्लॉक्स में तकसीम हो गई है। अब क्या क्या हैं, बट वॉट विल परहैप्स बी मोर डिफ़िकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक ऑफ द वेस्ट। अब देखो, पहले ही मैंने कहा था दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, रशिया और अमेरिका। सो राइटर ने क्या कहा था, वी शुड बी न्यूट्रल। अब आगे देखते हैं, आगे ये कह रहा है वी शुड नॉट कॉपी द मिस्टेक ऑफ द वेस्ट। अब देखो, वेस्ट ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए अपने पास में, जैसे इम्पीरियलिज़म किया है, अपनी लाइफ को पूरी मशीनाइज कर दिया। हमें उनकी मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करना, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़ रही हूँ। द वेस्ट थ्रू आउट द लास्ट 5 century has displayed extraordinary energy which has been taken many forms, some good some bad। अब आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी मिसाल आपके पास अफ़गानिस्तान, इराक़, इन ममालिक की है। अब वेस्टर्न ममालिक ने इन ममालिक पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को शो किया। आप एनर्जी समझ सकते हैं, वेपन्स, वॉर, बॉम्ब, अपनी सारी चीज़ें इन्होंने बैड थिंग्स में लगाई है। सो वी शुड नॉट कॉपी दिस मिस्टेक। It has explored the discover how to produce such an abundance of necessary and comfort as previous ages would have thought unimaginable. But all this, which might have ministered to human happiness, have been vitiated by one fatal fault: the love of power. Okay,
अब वेस्टर्न ममालिक ने ज़्यादातर किससे प्यार किया है? लव ऑफ पावर से किया है। वो चाहते थे कि हमेशा उन्हें पावर मिले, वो ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, पावर को इम्पोर्टेंट देते थे। आप देख सकते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है फ़लस्तीन, हर जगह पे आप देख लें, इराक़, अफ़गानिस्तान, उन्हें बस पावर से ही है, ह्यूमन हैप्पीनेस दे इग्नोर। आगे बढ़ रही हूँ मैं। अफ्रीकन एंड एशिया अलाइक हैव बीन टॉर्चर एंड ऑप्रेस्ड बाय द एनर्जिक इंजेन्युइटी ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी मिल रही है। एशियन कंट्री में सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी थी, सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया पाकिस्तान साथ थे, तो हम पर कौन हुकूमत कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, बिकॉज दे लाइक पावर। If the world is to be happy, energy and ingenuity must longer be suspended in the degree of mutual respect which has never hitherto existed. Perhaps some at least of the nation of Asia will have learned this lesson from the suffering at the hand of ingenious despots. हमें अब वेस्टर्न कंट्री से क्या सीखना चाहिए? लेसन सीखना चाहिए उनकी सफरिंग से, क्योंकि अब जो वेस्ट है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए बैथन रसल कह रहा है कि एशिया विल अवेक। परहैप्स ऑन द अदर हैंड दे विल ओनली हैव acquired a wish to imitate the rutless mastodon। mastodon एक बड़ा एलिफेंट को यहाँ पे एलिफेंट के मेस्टोडोन एलिफेंट को कहते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे एलिफेंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिज़ास्टर। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं एक बहुत बड़ा एनिमल, जैसे कि आप एलिफेंट ही समझ ले। अब एलिफेंट वेस्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, डिज़ास्टर कैसे ब्रिंग करेगा? किसी चीज़ के ऊपर कोई भारी चीज़ गिर जाए तो क्या होता है? वो चीज़ तबाह हो सकती है। तो यहाँ पे भी राइटर ये कहना चाह रहे हैं, वेस्ट इज़ गोइंग टू बी ruined। I have the gift of prophecy. I cannot plumb the depth of human folly, but while there is uncertainty, hope and apprehension are equally rational, and hope is more likely to be beneficial. So long therefore has hope remained possible। अब यहाँ पे hope का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल। hope हम कब करते हैं? जब हमें कुछ प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर हमारा ये होगा, तो यहाँ पे बैथन रसल होप कर रहे हैं कि एशिया विल अवेक सून, और ये इसकी होप ही है। हालांकि ये चैप्टर बहुत पुराना है, अभी तक एशिया अवेक नहीं हुआ है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर एशिया री अवेक होगा। Perhaps I shall continue to hope as longer part of my hope will be centered in the east। Although ये कहाँ से बिलोंग करता है? बैथन रसल वेस्ट से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी सारी होप, सारी प्रोडक्शन किसके लिए है? एशियन कंट्री और ईस्ट के लिए। तो चैप्टर बड़ा डिफ़िकल्ट था गर्ल्स। आप सारे कॉन्सेप्ट को समझना कि कम्युनिज़म क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, और इम्पीरियलिज्म क्या है, कॉस्मोपॉलिटन क्या है, और वेस्ट ने जितनी भी मिस्टेक की है हमें उसको फॉलो नहीं करना है। इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, तो प्लीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।